missed 2 sessions. Sarfaraz, 1 session you have missed. Sujit, you have missed 2 sessions. And Praveen, you are regular to the session. Very good. You have attended all these sessions. Very nice. Okay. And also you have to complete your pre and post requisites, all of you. And I can speak 2 languages, Hindi and English. So please feel free to communicate with any of these 2 languages. Yes, Aditya? Good evening, good evening. And also, all of you, if there is any doubt, you can use the raise hand option. आप raise hand option use कर सकते हैं, ठीक है? Great. So let's start our chapter. So we are going to do atom and molecules today. Okay? So all of you, have you attended session on this chapter or not? सबने attend किया है atoms and molecules, or you are new to the chapter? Yes, tell me. Yes, Praveen, you are telling something. Can't hear you. It is molecules, okay? One more time I will write. Yes, great, great, great. So I think most of ने पढ़ा तो होगा, right or not? New chapter, ma'am. Okay, okay, no problem, all of you. Okay, कोई बात नहीं, all of you. So let's start. Have you figures? कहीं देखा है आप लोगों ने? These stone figures are like human figures, right? And ये सच्ची में present है. These are present in the Moai, okay, on Easter Island, Chile में. Handcrafted, ये handcrafted sculptures हैं, and it is done by human beings only. Okay, so these handcrafted human figures, they are quite amazing and they usually represent a culture. ये एक culture को represent करते हैं और a tradition and heritage of a country. जो country है उसकी अपनी culture, उसके tradition को represent करते हैं, right? And they act as a medium to preserve rich traditional art of this sculpture making, right? Famous, right? Sculpture making. Ma'am, I'm comfortable in Hindi. Okay, don't worry, I'm going to talk in Hindi. सिर्फ हिंदी में भी करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करेंगे. Don't worry, ठीक है? So all of you, देखो stones को हम क्या करते हैं जब sculpture to make sculptures, right? आपने देखा hammers, chisels are used to make this. Okay, so all of you, up to what extent can matter break such that it cannot be further broke down? हम किस extent तक किसी भी matter को break कर सकते हैं? What do you think? कितने तक आप नीचे level तक कहाँ तक जा सकते हैं एक matter में? Ma'am, your voice is buffering. आदित्य, my voice is buffering. What about others? मेरी voice अच्छे से आ रही है या फिर buffer कर रही है? It is loading and coming. It is coming slow. It is not coming properly. बताइए सब लोग, my voice, आवाज अच्छे से आ रही है, मेरे को clear है? Yes, sir. प्रवीण, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक? Yes, clear. Yadnya is telling. Give me a minute, all of you. Give me a minute. दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग आपके पास वीडियो, मास्टर वीडियो आ रहा है, ओके, फ्रॉम आवर मास्टर ट्यूटर दिव्या मैम, ठीक है? उसको हम देखते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट फर्दर. ओके ऑल ऑफ यू, लेट्स सी दिस एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस. You know, chemistry has caused civilization. Not until around 460 BC did a Greek philosopher Democritus develop the idea of an atom. He asked this question: if you break a piece of matter in half and then break it in half again,
How many breaks would you have to make before you can break it no further? Democritus thought that it ended at some point, a smallest possible bit of matter, and he called these basic matter particles atoms. Unfortunately, the atomic ideas of Democritus did not have lasting effects on other Greek philosophers, including Aristotle. In fact, Aristotle dismissed the atomic idea as useless because he said that this is idealistic. It cannot be seen. How would you believe it or how would you prove it? There were really four elements or four basic substances from which everything else was composed. And this is what he believed: air, 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kanad, said, if we go on dividing matter, which is Padarth, we will get smaller and smaller particles. Ultimately, a time will come when we will come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. He named these particles Parmanu. Another Indian philosopher, Bakudha Katyayama, elaborated his doctrine and said that these particles normally exist in a combined form, which gives us various forms of matter. हिस्ट्री ऑफ एटम्स, इट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री इज गिवन टू यू कि हमें पहली बार आइडिया किसने दिया एटम्स का, राइट? तो बहुत सारे फिलोसोफर्स थे, इवन इंडिया से भी फिलोसोफर्स थे जिन्होंने हमें एटम्स के बारे में कुछ आइडिया दिया. यस, एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सो महर्षि कानद ने क्या बोला था? व्हाट ही टोल्ड. हेलो अश्विन, हेलो. यस आदित्य, आपने रेज हैंड क्या है? व्हाट हैपेंड? Ma'am, what is Okay, the great. Hindi of So let's- philosopher? Yes, Aditya. Ma'am, what is the Hindi of philosopher? Once again, What is the Hindi of philosopher? what is the फिलोसोफर? मतलब कि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं, ठीक है? जो मतलब कि ज्ञान बांटने वाले, उनको बोला, जैसे ऋषि मुनि जो पहले होते थे, राइट? जैसे इंडिया में, तो वैसे ही महर्षि कानद थे. उन्होंने क्या बोला? इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, ठीक है, मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं. ओके, सो वी विल रीच अ स्टेज वेयर फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है. आप फर्दर उसको डिवाइड और छोटे पार्टिकल्स या फिर टुकड़ों में नहीं बांट सकते, ठीक है? एंड उन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या बोला था? परमाणु. परमाणु को हम एटम्स को हम हिंदी में परमाणु बोलते हैं, ठीक है? परमाणु. ओके, फिर पकूड़ा काटायामा, एक और फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर. उन्होंने क्या बोला? पार्टिकल्स जनरली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म व्हिच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर. और ये जो पार्टिकल्स है जनरली आपको ऐसे सिंगल अकेले नहीं मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है? आपस में कंबाइन करते हैं और फिर ये हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर देते हैं, ठीक है? और डेमोक्रेटस ने क्या बोला था? इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाते हैं, स्टेज विल कम कि आप जो पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. जनरली जो उन्होंने महर्षि कानद ने बोला था, वही डेमोक्रेटस ने भी सेम चीज बोली. एंड ही नेम दिस इंडिविजिबल पार्टिकल्स एज एटम्स, और उन्होंने इस पार्टिकल्स का क्या नाम दिया? एटम्स. ओके, so there is a question coming for you, all of you. Let's solve this. आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है अभी. क्वेश्चन नंबर 1, let's see this. Okay, according to Democritus, matter is divided up to a stage when indivisible particles are obtained, which are known as. Democritus ने क्या बोला था इन particles को? A या फिर B? सृष्टि ने आंसर दिया है B, यज्ञा ने B, अश्विनी B. ओके, सबको आंसर देना है, all of you. Everybody has to answer. Aditya B, Rocky B, Praveen B, Sujit B, Sarfraz B, and yes, all of you, it is correct. Option B is the right answer. Very easy question, right? Atoms बोलते हैं. उन्होंने इनको नाम दिया था atoms, right? Great. So let's move ahead to the next. Okay. All of you have given the right answer. Okay. So how big are atoms, all of you? ये atoms कितने बड़े होते हैं?
Atom is the smallest unit of matter. Yes, smallest particle from which a matter is made. ठीक है, एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये मैटर, सारे मैटर जो है आपके एटम से ही बने, राइट? तो आपको यहाँ पे साइज पूछा, हाउ बिग आर एटम्स, कितना साइज होता है ऑलमोस्ट इनका. तो साइज ऑफ एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मच स्मॉलर देन आवर इमेजिनेशन से भी आपके छोटा है. ठीक है, इतना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. अ लेयर ऑफ एटम एज थिन एज शीट ऑफ पेपर इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स आर स्टैक्ड टुगेदर. जब आप मिलियन मतलब कि 10 lakhs ऑफ एटम्स को स्टैक एक दूसरे के ऊपर रखोगे तब आपको एक शीट मिलेगा पेपर की तरह. ठीक है, उतना थिन होगा. सोचो मिलियन, 10 लाख अगर एक के ऊपर रखोगे एक, तब जाके आपको एक शीट ऑफ पेपर मिलेगा. तो वो इतने छोटे होते हैं, राइट? सो द रेडियस ऑफ एन एटम इज जनरली मेजर्ड इन नैनोमीटर्स में हम इसका रेडियस मेजर करते हैं, विच इज 1 मीटर इज इक्वल टू 10 raised to power 9 नैनोमीटर. ओके, 10 raised to पावर 9 नैनोमीटर. ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू दिस. तो हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं. ओके, और 1 नैनोमीटर हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू 10 raised to पावर -9 मीटर. ये इतना छोटा अमाउंट है. ठीक है, 1 नैनोमीटर. तो हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं रेडियस को ऑफ द एटम. मैम इस क्वेश्चन को, यस सृष्टि करेक्ट, इस क्वेश्चन को फिर से समझाइए. तो इसमें क्या बोल रहा है, आपको साइज ऑफ एटम के बारे में बताया कि कितने छोटे साइज हो सकता है एटम का, राइट? तो इसमें बोला गया है इस आंसर में कि इतना छोटा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर 10 लाख से ज्यादा एटम्स को स्टैक करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो आपको एक थिन शीट मिलेगी पेपर को. इतने छोटे होते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो. और इनका जो रेडियस होता है, जैसे सर्कल का रेडियस निकालते हैं, तो एटम का अगर आप रेडियस निकालोगे तो वो किस में मेजर करते हैं हम, नैनोमीटर्स में. और 1 नैनोमीटर कितना होता है, इट इज इक्वल टू 10 raised to -9 मीटर. ठीक है, ओके, गॉट दिस? अब समझ आया आदित्य, गॉट दिस? Yes, ma'am. Yes, great. So let's move ahead, all of you. Everything around us is made up of atoms. कोई भी चीज ले लो, including us, human beings. हम भी एटम से बने हैं, right? Books, apple, water, glass, trees, सब कुछ जिसके पास मास है और जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इन सब कुछ एटम से बना है. Right, all of you? So there are variety of atoms with us. ये नहीं कि सेम टाइप ऑफ एटम से सारे मैटर बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है. We are having different substances, they are made up of different atoms. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, आपके पास हाइड्रोजन एटम है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट? सो ऑल ऑफ यू, ये एटम्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं आपको पता है? सपोज हाइड्रोजन एटम्स, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, दे आर मेकिंग हाइड्रोजन एलिमेंट, राइट? सो व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स इज नोन एज एन एलिमेंट. ठीक है, तो एलिमेंट्स सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से बनते हैं. इवन हमें लोग ह्यूमन बींग्स को, वी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. हम एक सिंगल एटम से नहीं बने हैं, डिफरेंट. हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, क्या पता नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है. इतने सारे एटम्स हमारे बॉडी में रहते हैं, लेकिन जो एलिमेंट होता है वो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से ही बनता है. ठीक है, इसको हम सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. ओके, सो हाइड्रोजन से बनेगा, हाइड्रोजन के एटम से नियॉन बनेगा, नियॉन के एटम से गोल्ड, गोल्ड एटम से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एटम से कार्बन, कार्बन के एटम से सिल्वर, सिल्वर के एटम से ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से, और नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन के एटम से. करेक्ट? सो वी आर कॉलिंग देम एज एलिमेंट्स, राइट ऑल ऑफ यू? ग्रेट. सो सबने पीरियोडिक टेबल देखी, पीरियोडिक टेबल, राइट? सबने देखी है, राइट ऑल ऑफ यू? सो देयर आर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में ऑल ऑफ यू? 118 आपको दिख रहा है, राइट? एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार. टोटल अभी तक हमने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर चुके हैं. ठीक है, लेकिन और आप सबको पता है कि इन सबके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं और ये केमिकल रिएक्शंस भी दिखाते हैं. तो क्या हम हर बार केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए नाम लिखते रहेंगे? बिकॉज द नेम्स आर वेरी बिग, राइट?
इट विल बी वेरी टायरिंग प्रोसेस, आप थक जाओगे हर बार नाम लिख लिख के। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो इनको कुछ सिंबल्स दे देना चाहिए, राइट? सो इट इज वेरी इनकन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स बाय देयर नेम ऑल द टाइम, राइट? उनके नाम लिखने बार बार बहुत टफ है हमारे लिए, राइट? सो ऑल ऑफ यू, व्हाट साइंटिस्ट स्टार्टेड डूइंग? ओके, तो उन्होंने सिंबल स्टार्ट किया देना। सो जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, उन्होंने प्रपोज किया सिंबल फॉर दीज एलिमेंट्स, राइट? सिंबल्स उन्होंने देने स्टार्ट किए, ठीक है? तो उनके टाइम में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन्होंने उनके सिंबल्स दिए, राइट? सो हाइड्रोजन का उन्होंने देखो कैसा दिया, एक सर्कल दिया विद अ सर्कल विद अ डॉट in the center, carbon का circle with grey color inside, मतलब shade inside, oxygen का with a circle, single circle, ठीक है? sulfur circle with a plus sign inside it, राइट? तो ये तो बस 4 आपको एलिमेंट्स के सिंबल यहाँ दिखाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे सिंबल्स थे। सो ऑल ऑफ यू, ऐसे सिंबल्स को याद रखना आपके लिए कितना मुश्किल होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज, राइट? याद करने में प्रॉब्लम आती। तो दूसरे साइंटिस्ट आए फिर, हिज नेम वाज बर्जीलियस, राइट? उनका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने हमें दूसरे रूल्स दिए, मेथड दिया टू सिंबलाइज दीज एलिमेंट्स, राइट? और जो आज आप यूज करते हो ना जो सिंबल एलिमेंट्स के, वो बर्जीलियस के ही दिए हुए हैं, ठीक है? सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ आवर मास्टर ट्यूटर व्हाट इज बर्जीलियस सिस्टम ऑफ सिंबलाइजिंग दीज एलिमेंट्स, ठीक है? जल्दी से देखते हैं, प्लीज लुक एट इट वेरी केयरफुली, ठीक है? फिर हम इसको डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी। लेट्स सी दिस फर्स्ट। There is known elements at 118. With so many elements around, it is extremely inconvenient to use their names when we write down equations or when we represent them. This is why we came up with the idea of using symbols to represent these elements. We had devised a number of ways to represent them at different points in history. Symbols to represent elements had been in use, believe it or not, since the time of the ancient Greeks. The Greeks were the first to use symbols to denote elements. They did not know about elements and compounds back then. They believed that the earth was made up of 4 physical elements, namely water, air, fire, and earth. Well, this is not the case, as we have later figured out. What's interesting is that they chose to use these symbols for representing them. Take a look. Later in time, in 1808 AD, John Dalton, the English chemist, known for his atomic theory, devised a method to represent elements using symbols. Since the symbols in old alchemy were not fit to use in his theory, he proposed a new set of standard symbols for the chemical elements. They were based on basic circles along with lines and dots like these. Dalton's symbols, however, were hard to memorize. This made things worse for the chemists, who didn't really make much use of these symbols. A few years later, in 1813, a Swedish chemist called Berzelius came up with an alternate system of symbols. Instead of using circles and lines, he suggested the use of letters. Soon, Dalton's system was replaced with the chemical symbols and formulae proposed by Berzelius. Most of them are still in use today. The Berzelian system has 4 rules. The first rule is that the symbols of the most common elements, mainly non-metals, use the first letter of their English name. For example, oxygen is represented by O. Similarly, nitrogen will be N. Carbon will be C, and boron will be B. Rule 2 is that if the name of 2 elements begin with the same letter, the first 2 letters are taken. Now, aluminium and argon both start with an A. We hence write the first 2 letters of their names. For aluminium, it is Al, and for argon, it is Ar. Also, the first letter is always written in capital, and the second letter is written in smaller case. Rule number 3 states that if the first 2 letters of the elements are the same, then the next prominent letter should be taken. For example, let's take magnesium and manganese. The first 2 letters are the same. In this case, look for the third letter and use that alongside the first letter.
The symbol of manganese will hence be Mn and that of magnesium Mg. Here, the stress is on the letters N and G. Now, rule 4 is for those elements whose names are derived from their Latin origin. For example, the element sodium is called natrium in Latin. So what do you think will be the symbol for this element? While writing symbols for such elements, the same rules are followed, but with their Latin names. Here, the name is natrium. Sodium has first two letters as its symbols. The first two letters are Na. Sodium is hence represented by N. तो रूल्स ऑफ बर्जीलियस सिस्टम, ठीक है, उन्होंने क्या क्या रूल्स दिए, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. रूल 1 कि फर्स्ट लेटर, कुछ एलिमेंट्स के उन्होंने सिर्फ फर्स्ट लेटर ही लिए फॉर गिविंग दी सिंबल, राइट. जैसे कि हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर लिया, जैसे तो इसका सिंबल हो गया कैपिटल H. ठीक है, आप कभी भी स्मॉल h यूज नहीं करेंगे ऑल ऑफ यू, हमेशा कैपिटल यूज करना है. ठीक है, इट विल बी रॉन्ग अगर आपने स्मॉल यूज किया तो. ठीक है, फ्लोरीन इट इज कैपिटल F. ठीक है, और फिर रूल 2, कुछ एलिमेंट्स का उन्होंने फर्स्ट टू लेटर्स यूज किए, क्योंकि कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स है कि उनके सेम लेटर से नाम स्टार्ट हो रहे. हाइड्रोजन, हीलियम दोनों H से हैं, तो हीलियम का भी हम H नहीं ले सकते, तो उन्होंने फर्स्ट टू लेटर्स ले लिए. यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल और सेकेंड लेटर स्मॉल होना चाहिए, राइट. और लिथियम का कैपिटल L स्मॉल I. ओके, एंड रूल 3 कि फर्स्ट एंड नेक्स्ट प्रोमिनेंट लेटर आपको देखना है. ठीक है, फर्स्ट और थर्ड लेटर ऑल ऑफ यू. सो एग्जांपल मैंगनीज एंड मैग्नीशियम. तो मैंगनीज का होता है सिंबल कैपिटल M स्मॉल n और मैग्नीशियम का कैपिटल M स्मॉल g, राइट. यस, क्योंकि दोनों ही Ma और Ma से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप दोनों का Ma तो नहीं ले सकते, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लेटर लिख लिया. ठीक है, Mn और Mg फॉर मैग्नीशियम. फिर रूल 4 बोलता है कि कुछ जो सिंबल्स थे वो एलिमेंट्स के लैटिन नेम से डिराइव हुए हैं. ठीक है, तो सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम. ठीक है, तो फिर सोडियम का सिंबल हो गया कैपिटल N स्मॉल a, Na, राइट. आयरन का लैटिन नेम है फेरम, तो इसका सिंबल हो गया Fe, राइट. और आपका सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटेनम, तो इसका सिंबल हो गया Ag. ओके, Ag इज अर्जेंटेनम. ठीक है, ग्रेट. सो नाउअडेज अगर अब कोई क्या कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता है नया, ठीक है, तो इट विल बी गिवन बाय द नेम एंड द सिंबल विल बी गिवन बाय IUPAC. IUPAC क्या है? एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, तो अगर कोई भी अब नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो नेम और जो सिंबल है वही ऑर्गेनाइजेशन देगी, एंड एंटायर कंट्री, मतलब कि ऑल दी वर्ल्ड हैज टू फॉलो इट. ओके, so all of you, there is a question coming for you. I want all of you to give answer. ठीक है, let's see this. Yes, very good Shrishti. Okay, so carbon का symbol क्या है all of you? What is the symbol of carbon? Yes, Shrishti has given the answer. सबको आंसर देना है, and all of you have to follow the rules. Shrishti कैपिटल C यूज करिए, ठीक है, ताकि आपको हमेशा याद रहे, हैबिट रहे. ठीक है, आप कहीं स्मॉल c ना लिख दे. ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट. यस, कैपिटल C, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम का वेरी नाइस ऑल ऑफ यू. यज्ञा, अश्विनी, शौर्या, वेरी गुड, इट इज कैपिटल K. Very good, Praveen. Very good, Pratibha. Phosphorus next. Phosphorus. P. Yes, capital P use करते हैं phosphorus का first letter. And calcium. Very good, correct. मैम कैल्शियम का Ca. Yes, calcium का Ca होगा capital C और small a. ठीक है? और yes, phosphorus का P, correct. ठीक है, सो हमेशा आपको यही वे ऐसे ही लिखना है. ठीक है, स्मॉल ने नहीं लिखना, कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड शुड बी स्मॉल. ठीक है, ग्रेट.
So let's move ahead to the next. Okay, next poll question आ रहा है. All of you, अगर किसी को poll question नहीं दिखता, आप immediately rejoin करेंगे session को, right? अगर फिर भी आपको नहीं दिखता तो you can go to Google Chrome, जानते हैं ना? Google Chrome जाओ and you can type there learn.byju's.com. ठीक है, वहाँ क्या type करना है? learn.byju's.com. और वहां से आप सेशन ब्राउजर से ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखे तब ऐसा करना है. अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो यहीं पे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, गॉट दिस. सो लेट्स सी द क्वेश्चन coming for you. Question number 3, chlorine and chromium are represented by the symbols dash and dash respectively. आपको क्लोरीन का और क्रोमियम का सिंबल यहाँ पे बताना है. Okay, so the correct answer is given by only 1, 2, 3, 4, 5 students ने correct दिया है. प्रतिभा, यज्ञा, सृष्टि, प्रवीण and सुजित. All of you, the right answer is this. Option C आपका right answer है. ठीक है, क्लोरीन का हम Cl लेते हैं. ठीक है, Cl first and third letter, और क्रोमियम का Cr first and third letter again, Cl and Cr. Okay, got this. So option C is the right answer क्योंकि दोनों CH से शुरू है ना, right? So Cl for the chlorine and Cr for the chromium. Okay, so let's move ahead to the next. What is wrong in the following symbol? ये बहुत easy question है, सबको बताना है. ठीक है, let's see. Okay, पहले में दिया है, okay, give the correct symbol in each case. बताना है क्या गलती है and then you have to give the correct symbol also. सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है? ऑल ऑफ यू जल्दी से बताइए. यहाँ पे SO दिया है, यज्ञा ने बोला है Na. ओके प्रवीण, सोडियम ऑल ऑफ यू, yes, Na, so many Na I can see, and yes, you all are right, it is Na. हमने इसका कहाँ से डिराइव किया है सिंबल? फ्रॉम इट्स लैटिन नेम विच इज नेट्रियम. नेट्रियम से लिया है फर्स्ट 2 लेटर्स Na. वेरी गुड. हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? यस, इट इज कैपिटल H, राइट? तो Hg किसका सिंबल होता है? Hg सिंबल किसका होता है? सुजित इज टेलिंग Hg. Hg इज नॉट द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन. सुजित, Hg कौन बताएगा कौन से एलिमेंट का सिंबल है Hg? Yes, very good सृष्टि, it is mercury. all of you, mercury. सृष्टि ने सही बताया, mercury का सिंबल होता है Hg. ओके, yes, mercury. mercury यूज होती है ना आपके थर्मामीटर्स में, mercury is used, right? तो mercury, वही mercury. Okay, not planet वाला mercury. Okay, great. So cobalt, next C, cobalt. यहाँ पे क्या गलती है all of you? What is wrong here? Yes, very good, very nice, correct. It is capital C small o. तो आपको ये भी दिखना है कि लिखा तो है सिंबल, राइट, लेकिन the way it is written is wrong, right? कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट लेटर and small letter should be the second. Okay, second letter should be in small. Very good, correct answer, right? So very nice all of you, सभी आंसर आपने सही बोले. ठीक है, ग्रेट. सो लेट्स मूव अहेड. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी नाउ. जल्दी से बताइए, कोई डाउट किसी को कुछ समझ नहीं आया? यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? यस, नो मैम, नो. सो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ओके, गिव मी अ मिनट. यस, ये कौन से एलिमेंट का सिंबल है? AU. AU कौन से एलिमेंट का सिंबल है? शौर्य ने बोला है गोल्ड. यस सरफराज, गोल्ड. गोल्ड.
ओके ग्रेट. एंड यादन्या ने बोला है सिल्वर, सृष्टि ने बोला है गोल्ड, प्रवीण ने भी बोला है गोल्ड. ओके, सो मेनी गोल्ड. यस, इट इज राइट. सो गोल्ड को हम इससे दिखाते हैं, ठीक है, AU से दिखाते हैं, क्योंकि हमने इसका नाम डिराइव किया है फ्रॉम इट्स लैटिन नेम ऑरम. ओके, ऑरम इज द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड. एक और. ओके, यस, तो इसका नाम पड़ गया AU. ओके, गोल्ड ऑल ऑफ यू. ठीक है, AG है सिल्वर का, किसी को कंफ्यूजन हो जाता है राइट, किसी किसी को. AG इज फॉर सिल्वर, AU इज फॉर गोल्ड. ठीक है, यस, वेरी गुड. Okay, so let's move ahead to the next. Atoms of most elements do not exist independently. आपको पता है ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, भाई आप इनहेल करते हो राइट, जब हम सांस लेते हैं अंदर वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन राइट. तो ऑल ऑफ यू, ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? व्हाट डू यू थिंक? एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एटम ऑक्सीजन या फिर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में? मॉलिक्यूल. वेरी गुड सृष्टि. यस, सो एक्चुअली क्यों नहीं करता एटम के फॉर्म में? क्योंकि इट इज अनस्टेबल, मतलब कि स्टेबल नहीं है ये सिंगल एटम के फॉर्म में. तो क्या करता है, एक और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है. नाउ इट इज फॉर्मिंग मॉलिक्यूल एंड इट इज नाउ स्टेबल. ये अब एक स्टेबल चीज बन गया है, अब ये एग्जिस्ट कर सकता है. तो एटमॉस्फेयर में जब बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल साथ में आ जाते हैं तो हम बोलते हैं इट इज ऑक्सीजन गैस विच इज अ मैटर राइट. Yes, molecule, very good. So oxygen atom, they are chemically combining together, मतलब कि इनके बीच में रिएक्शन हुआ और ये कंबाइन करके और O2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिए. ठीक है, वेरी गुड. सो ऑल ऑफ यू, इनको हम क्या बोलेंगे? जब एटम साथ में आ गए तो साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो हम उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं. तो अब इसको क्या बुलाओगे? अब ये इसको ऑक्सीजन एटम नहीं बुला सकते आप, इसको अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बुलाओगे. ठीक है, व्हाट डू यू कॉल इट? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. So all of you, molecules भी different types के होते हैं right. What are the different types of molecules? So molecules जो कि can be made of same of different atoms right. जैसे कि अगर सपोज नाइट्रोजन एटम है, दो नाइट्रोजन एटम साथ में कंबाइन हो गए तो N2 मॉलिक्यूल बन जाता है. नाइट्रोजन गैस में ना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में. आपने पढ़ा होगा ओजोन राइट. ओजोन सबको पता है ना, ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड व्हिच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम UV रेज राइट. सो ओजोन कंटेन्स 3 ऑक्सीजन के एटम्स राइट, O3. यस, सो मॉलिक्यूल जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बना है. यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, 2 हाइड्रोजन एटम से. सो हाइड्रोजन गैस में वो H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, और यहाँ दूसरे साइड देखो, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में 2 वाटर के मतलब कि 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर रहे हैं टू गिव यू मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 1 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन एटम है. अमोनिया में 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं. तो अलग अलग आपको एटम्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे राइट ऑल ऑफ यू. सो व्हाट डू वी कॉल दिस ऑल ऑफ यू? इनको जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं, हम उनको कौन से मॉलिक्यूल्स बुलाते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? किसी को पता है? Those who have done this chapter, what do we call? Elements. Yes, Aditya, once again एक और बार बोलिए. Elements. Yes, it is known as molecule of elements, right? क्या बुलाते हैं all of you? Molecule of elements, right? Yes, very good, Shreyash. Yes? Shaurya, I'm so sorry. Shaurya. Okay, so all of you, these are known as molecules of elements. ठीक है, nitrogen, ozone, hydrogen, H2, O3, N2, right? So molecules जब same kind of atom से बने तब हम बोलते हैं इनको molecule of elements, right? तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए. प्लीज राइट डाउन सम एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक. ठीक है, अपने नोटबुक में लिख लीजिए सम एग्जाम्पल्स. ओके, एंड व्हाट डू वी कॉल दीज? जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से कंबाइन होके बनते हैं उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. सो मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स राइट. सो H2O, NO2, NH3 राइट.
So these are some of the examples. ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? Very easy it is. अगर different same kind से बने होंगे तो उनको molecule of elements बुलाएंगे, और compounds जो molecule of compounds होते हैं they are made up of different kind of atoms, right? Great. Yes, so all of you, अभी तक हमने क्या पढ़ा? एटम्स केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स किससे बनते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होके, एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड H2 इज एन एग्जांपल. ओके, yes, so all of you, let's see one question based on this. Are you ready? Question number 4, assertion. Bromine exists as a molecule of element. Reason is molecule of elements are constituted by two types of atoms, right? So what is the right answer? Praveen is telling B, Yadnya C, Aditya B. Okay. So all of you, bromine. So Br2 ऐसे एग्जिस्ट करता है ब्रोमीन. तो क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? तो कुछ स्टूडेंट्स सी बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बी बोल रहे हैं, राइट? सो बी सी बी सी बी बी बी. ओके, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग बी. ओके, तो राइट आंसर क्या है ऑल ऑफ यू? ब्रोमीन एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. मैंने बताया ना, ब्रोमीन ऐसे एग्जिस्ट करता है, मतलब कि दो ब्रोमीन साथ में कंबाइन होके इट इज फॉर्मिंग, इट इज गिविंग यू मॉलिक्यूल. तो ऑफ कोर्स इट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ये ट्रू है. लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? दे आर कंस्टिट्यूटेड बाय टू टाइप्स ऑफ एटम. ऐसा तो नहीं होता. दे आर ओनली कंस्टिट्यूटेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम. टू टाइप्स के एटम नहीं प्रेजेंट होते, ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट. सो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन सी. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑल ऑफ यू, राइट? समझ आ रहा है सभी को? सो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है, यू आर रॉन्ग. सिर्फ यदन्या और सरफराज ने ऑप्शन सी आंसर दिया है. वेरी गुड बोथ ऑफ यू, वेल डन. ओके, सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? सो नेक्स्ट पोल क्वेश्चन इज कमिंग फॉर यू. लेट्स सी दिस. Which of the following are molecule of compounds? Carbon monoxide, chlorine, hydrogen chloride. आपको बताना है इनमें से molecule of compounds कौन से होंगे. Okay, time up. So I can see 1, 2, 3, 4. See, 4 students ने correct answer दिया है. Yadnya, Aditya, Praveen and Mahesh. So the right answer is all of you is option C. Both 1 and 3 are right. Carbon dioxide and hydrogen chloride. Carbon dioxide में देखो, it is made up of CO. दो O और एक कार्बन, तो टू टाइप्स ऑफ एटम्स है ना, तो इट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन और क्लोरीन से बन रहा है, सो इट इज टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, सो इट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. क्लोरीन, ऑल ऑफ यू, क्लोरीन जो होता है Cl2, सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, क्लोरीन एटम से, राइट? सो दिस इज नॉट योर आंसर. बोथ 1 and 3 आर राइट हियर. ओके, Ashwini is telling I can't see the poll question. Ashwini and Shaurya, yes, मैंने बताया था ना क्या करना है. आपने rejoin करके देखा सेशन को? अगर फिर भी आपको नहीं दिखा, आप Google Chrome पे जा सकते हो and type learn.byju's.com और वहां से सेशन ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चले. Okay, great. So next question, let's see all of you.
Yes, textbook question. What do the following denote? Okay. सो आपको एक सिंगल एन दिया है, ठीक है, सिंगल नाइट्रोजन सिंबल दिया है. इट मीन्स व्हाट, ये रिप्रेजेंट करता है एक नाइट्रोजन के एटम को. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. एन मतलब कि एक नाइट्रोजन का एटम ये रिप्रेजेंट कर रहा है. 2n मतलब कि दो नाइट्रोजन के एटम्स आ गए आपके पास. अब 2n मीन्स टू नाइट्रोजन एटम्स, कंबाइन नहीं, अलग अलग. ठीक है, दो नाइट्रोजन के एटम्स. और N2 मीन्स अब मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है. N2 और उसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब कि वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. 2N2 मतलब कि दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, राइट. ठीक है, तो आपको कोई दे देगा, ठीक है, 3H2O. इट मीन्स व्हाट, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं, राइट. यस, समझ आ रहा है सभी को? ग्रेट, वेरी नाइस. सो ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. ये दोनों मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, आपको बताना है इनमें डिफरेंस क्या है. क्या कोई बता सकता है आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है इसमें? यस सृष्टि. 3 ऑक्सीजन के एलिमेंट है, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट है. वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट सृष्टि. कि ओजोन में, यस आदित्य, मैम ओजोन में 3 तरह के मॉलिक्यूल हैं एंड ऑक्सीजन में 2 तरह के मॉलिक्यूल हैं. ओके ओके आदित्य, यू आर राइट. लेकिन मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं करना, आपको यूज करना एटम्स. ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ऐसे बोलना है. ठीक है, एटम वर्ड यूज करो, राइट. यस, वेरी गुड, करेक्ट. सो ऑल ऑफ यू, if you see here, number of atoms in both the molecules are different. ठीक है, ओजोन में यहाँ पे आपको 3 ऑक्सीजन एटम मिल रहे हैं और दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आपको 2 ऑक्सीजन के एटम मिल रहे हैं, राइट. सो इट मीन्स व्हाट, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक टर्म. तो ये जो नंबर होते हैं ना एटम्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, हम इसको एक स्पेसिफिक टर्म से, नाम से बुलाते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? किसी को पता है? नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल का देने के लिए हम उसको एक पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं. व्हाट डू वी कॉल दैट? किसी को पता है? ऑल ऑफ यू, डज एनीवन नो? कोई बात नहीं, लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ आवर मास्टर ट्यूटर. ओके ऑल ऑफ यू, लेट्स सी दिस, देन आई विल अगेन डिस्कस विद यू. लेट्स सी दिस फर्स्ट. The total number of atoms that constitute a molecule. A molecule is made up of different bunches of atoms getting together. They could be same. टर्म मैं जिसकी बात कर रही थी, इट वाज एटमिसिटी. ओके, सो व्हाट इज एटमिसिटी ऑल ऑफ यू? इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल. आपके मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम हैं इज एटमिसिटी. ओके, आपको बस काउंट करना है. तो मोनो एटॉमिक कंटेन्स ओनली सिंगल एटम्स, जैसे कि हीलियम, आर्गन, इनमें सिर्फ सिंगल एटम्स होते हैं. ठीक है, डायटॉमिक, डाई मतलब कि 2, ठीक है, डाई मतलब कि 2. तो जिनमें 2 एटम्स होंगे, जिनकी एटमिसिटी 2 होगी, उनको आप डाई एटॉमिक बुलाओगे. जैसे कि ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को, दीज आर नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. ट्राई एटॉमिक, ट्राई मतलब कि 3, ठीक है, ट्राई मतलब 3. सो ओजोन जैसे कि एग्जांपल है, O3 मॉलिक्यूल, राइट, उसकी एटमिसिटी 3 होती है क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, तो इनको आप बुलाओगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल किनको बुलाओगे? जब एटमिसिटी इज मोर देन 3. ठीक है, मतलब कि 4, 5, 6, 7, 8 कितनी भी एटमिसिटी आ जाए, 3 से ज्यादा, आप सबको उनको क्या बुलाओगे?
क्या बुलाओगे? यू आर गोइंग टू कॉल देम एज पॉलीएटॉमिक. तो फॉस्फोरस में P4 मॉलिक्यूल ये फॉर्म करता है. ठीक है, मतलब कि इसकी एटॉमिसिटी 4 है, तो आप इनको बुलाओगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉली मतलब मेनी. ठीक है, तो इट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. Okay, all of you. So there is a poll question coming for you. Let's see this. The atomicity of H2SO4 and HNO3 molecules are dash and dash respectively. आपको इनकी atomicity बतानी है. Atomicity पता है ना? काउंट करिए बस नंबर ऑफ एटम्स को, यू विल गेट दी एटॉमिसिटी. यस, H2SO4 में कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? HNO3 में कितने एटम्स दिख रहे हैं? Okay, time up, Yadnya and Praveen. The right answer of this question is option D, 7 and 5. ठीक है, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है. सो H2SO4 and HNO3. H2SO4 2 + 1 + 4 कितने हो गए? 7 हो गए ना एटम्स. इसमें हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं. टोटल कितने? 7 एटम्स. HNO3 में कितने? 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन. सो टोटल 5, राइट? तो 7 and 5 आर योर आंसर. ठीक है, तो वेरी इजी, आपको बस काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स एंड यू विल गेट योर आंसर. So let's see this question. आप सभी को आंसर देना है. Okay, all of you, let's see this quickly. Okay, what is the atomicity of the following molecule? Neon का बताइए. पहले नियॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नियॉन आपको टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बताना और इसकी एटॉमिसिटी बतानी है. यस, पहले एटॉमिसिटी बताओ फिर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बताना. ओके, मोनो एटॉमिक. एंड व्हाट इज द एटॉमिसिटी, सृष्टि? Ma'am, we can write like this also. No, ma'am. The number of atoms in a molecule of an element is called atomicity. Number of atoms in a molecule of an element. सिर्फ आप molecule of an element की बात नहीं कर रहे हैं ना. molecule of compound में भी atomicity use करते हो, तो आप इसलिए molecule सिर्फ लिखते हैं हम. Number of atoms in a molecule is known as atomicity. ठीक है, so 1 and monoatomic, right? Sulfur के लिए S8 molecule. So it is what, all of you? जल्दी बताइए atomicity और type of molecule. Very good. यादन्या, polyatomic and yes, atomicity हो जाएगी इसकी 8. Very good. Correct answer. Fluorine F2. Diatomic. It is containing 2 atoms. And ammonia, NH3. Very good. Polyatomic. And it is containing 4 atoms, right? Very good. Very nice. Well done, all of you. Correct. Very good. So, very easy ना? बहुत easy है. Just आपको count करना है and आपको type of molecule. So, any doubt to anyone, please let me know quickly. जल्दी से बताइए. So there is a question for you, question number 7. Identify the correct pair that has polyatomic molecules containing phosphorus atoms A, B, C. आपको इनमें से polyatomic ढूंढना है molecule और उसमें phosphorus होना चाहिए. Yes. Polyatomic and which is containing phosphorus. यादन्या ने B बताया. Praveen B. Answer B. Okay.
B. Very good, all of you. Yes, it is the right answer. Very nice. Option B is the right answer. H3PO4 में 3 हाइड्रोजन 1 phosphorus 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं, राइट? तो टोटल कितने हो गए? 8 एटम्स, राइट? 8 एटमिसिटी है. इट इज पॉलीएटॉमिक एंड इट इज कंटेनिंग फॉस्फोरस, सो राइट, यस. और PCl3 में 4 नंबर ऑफ एटम्स है, एक फॉस्फोरस के 3 क्लोरीन के, सो it is polyatomic and its atomicity is 4, so this is also right. Very good. Correct. Very nice. So any doubt to anyone? Till here, यहाँ तक कोई doubt है? Okay, so let's summarize everything. आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा atoms chemically combine होते हैं to give you molecule. Molecule of atoms they are made up of same kind of atoms, and molecule of compound वो different kind के atoms से बनते हैं, right? Molecule of elements example हो गया oxygen molecule. Molecule of compound example हो गया water molecule. And what is atomicity? It is the total number of atom जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, राइट? सो ऑल ऑफ यू, होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. देयर इज अ होमवर्क रिमाइंडर, प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है? यस, एंड बिकॉज यू नो दैट. यस आदित्य. बाय मैम. Okay, bye bye all of you. Thank you so much for attending this session. We are going to meet in the Good next night, session. ma'am. So till take care of yourself. ma'am. Bye bye. Good night.